Very good morning to all. We will start our third session on the NetSet workshop. I welcome all the participants in this session. Mahatma Gandhi Vidya Mandir Arts, Commerce, Science College, Maligaon City, is celebrating its golden jubilee year this year. Today, in our NetSet workshop, to talk on the topic communication, we have Indian Professor Dr. Professor Zareen Ma'am. I would like to give a brief introduction in front of you. Professor Zareen Ma'am, she has completed her graduation from JIT. She has completed her masters in English from MSG College, Maligaon Camp. Afterwards, she has qualified the SET exam once and the NET exam twice. She is pursuing her PhD from North Maharashtra University. Until now, she has published 5 research papers. So, I am thankful to Zareen ma'am, and I will request her to guide us. Professor Zareen ma'am. Hello, am I audible to you? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you so much, sir, for my introduction. Honorable Principal H.C. Hale, sir, our beloved Vice Principal Dr. Shakib Ahmed, IQAC Coordinator Dr. Arif Anjum, sir, IQAC Coordinator Dr. Rizwana Hamdani, ma'am, Academic Coordinator Dr. Mubin Nazir Ahmed, sir, all my dear colleagues and participants, I heartily welcome you and very good morning to everyone. Hello, is it okay? Am I audible? Yes, ma'am. You are audible to us. Okay. Very warm good morning to all. I heartily welcome you for today's session. I would like to congratulate each and every participant who is aspirant for NET and SET that you are, that already have taken your first step for getting JRF NET or SET because you are here right now. So again, I welcome you and myself, Zarleen Nas, and my today's topic is communication, that which is comes under the unit 4, and in examination you get 5 marks related to these topics, and all the concepts and the terminology if clear into your minds, then these marks in your hand, because that communication, this is the process of mankind, that we are the human and this is the nature to communicate every. अच्छा ठीक है, ये वीडियो ऑफ कर दूं क्या? हम्म, ठीक है. Sorry for the interruption. Okay, let's move forward to the first slide, that is the concepts and definition of the communication. And the first word is communis, which is derived from the Latin word that communication, which is comes from the Latin origin. And here you can get what is the meaning of आवाज communis. क्यों That नहीं आ रही? hello, is it something wrong?
No, ma'am. Please continue. हेलो. हाँ Okay. मैम, आवाज आ रही है. प्लीज कंटिन्यू. Sorry for the technical issues. Yeah. Communus means to share and to make the information common. That is the basic need or the theme of the communication. That is the integral part of our life, to share the ideas, feelings, thoughts, opinions, and suggestions. हाँ कर. First, we have to know what is the definition of communication, a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs, or behavior. That communication, it doesn't mean that it contains only words and sentences. It contains symbol, sign, and behavior as well. A technique for expressing ideas effectively. That is the another thing that we have to effectively transmit our ideas and thoughts to the person. Now the next one is the technology of the transmission of information as by print or the telecommunication. I will discuss is later in the mass communication. All these definitions are written in Merriam Webster, that is the dictionary. Now comes to the next slide, that is function and objectives. That is the main thing. If you are going to understand what is the function of the communication, and which is really close related to the objectives of communication, the first one is to keep yourself updated and for decision making. How that decision making comes into the communication, because if we are talking right now, so we are getting some knowledge and we are ultimately updating ourselves, and those knowledge and those information which we are gathering, we will use those knowledge for the future decision making. So that is the function of communication, education, and instruction. Right now I am delivering some lecture and you are listening to me, so you are getting educated and those instructions are you are getting follow. The smooth functioning of group. If you are communicating very well, then your group of organization will run very smoothly. Motivation and moral control, whatever the good and bad behavior you learn, you can control your moral, your ethics. Culture promotion means whatever the ethics we have, our culture we have, we those culture transmitted to our loved ones, our younger ones, and those culture um, run through the generations. Integration means that communication integrate each one of us. Right now we all are gathered here for getting the knowledge, and this is the integration means एक साथ हम जमा हो गए हैं for the getting some knowledge. So this is, and without communication we can't transmit our information. So integration, this is the best example. Right now we are all present in online platform. Next one is nature and characteristics. Communication is continuous process. Even you are not saying sometimes something, but what happen, your body and your eyes are saying something. So this is a continuous process. It never stops. Communication is all pervasive. Pervasive means that communication, if I am going to ask you something, what is your name or what is your age something, then you are able to give the answer. So this is the communication is a kind of pervasive behavior in itself. And then common language means with the same community people speaking the same language. Meeting of mind is necessary. Why meeting of mind is necessary? Because if we communicate, and if I am speaking some alien language to you, you are not getting it, so that doesn't make any sense. So that is necessary to speak in the same language which is readable, understandable to everyone. The message must have substance means that have something to say, means उसमें कुछ होना चाहिए, कुछ मवाद जिसे उर्दू में कहते हैं, that should have something. It also be conducted by the gestures. Not only the words are applicable for transmitting our informations, but the gesture, body language is also playing a very important role. I will discuss it later. Communication always has context means whatever the running in the background. Right now we are here, this is a two-way process. At the last of the lecture I will provide you some time to ask me questions. So this is the context. What is the context of today's communication? Can anybody say?
कॉन्टेक्स्ट मीन्स बैकग्राउंड में हम यहाँ पर क्यों हैं सब एक साथ. कॉन्टेक्स्ट क्या है आज की कम्युनिकेशन का? Okay, so the context of the communication is we are here for having knowledge, for getting the JRF or net or set. These tags we really want to have it. So the context, अगर यहाँ communication हो रही है तो इसके पीछे कोई aim है, that is getting net JRF. Okay, communication skills, there are 4 basic skills: the listening, speaking, reading and writing skills. The first two, one listening skills and speaking skill, they both are called as oracy, and the third and fourth one, reading and writing skill, called as literacy skill. Mute your mic, someone's mic is on. Okay, so all that material which I have collected, which I have collected when I was preparing for my net examination, so these all the materials are converted into slides. And if you guys are Ashti, really please interested mute and your phone. really want to get JRF or net, so you can note it down as well. Make sure your mic should be off, everyone. Now come to the class communication, classroom communication, right? What is classroom communication? Why it comes under the net set examination? Because net set examination is the criterion exam, is a competitive exam, and after qualifying this exam you will be become a professor, a lecturer, so you have to know what is the classroom communication. The first one is the primary objective of classroom teaching is to get the instructional objectives. Some instructional objectives has been already declared in the book, and before teaching every teacher have some objectives in the mind, and after getting the lecture or after having the class, those objectives should be obtained. The next one is the process of classroom communication affected by teachers, students, message, instructional method, media and learning environment. So in the process of communication, what are the some points which we have to be in our mind? These are the some points: instructional method, media, learning environment. These are the components of classroom communication. Communication helps to transmit the knowledge from teacher to students. So for a teacher should be proficient in all 4 modes. हमने अभी देखा these are the 4 skill: listening, speaking, reading and writing. तो ये जो दोनों skills है oracy and literacy, one teacher should be very mastery over those skills. And the next one is the process of communication. After that, these slides I will show you this chart, and after that it will become easy to understand what is exactly the process of communication. Sorry ma'am, please in Urdu. Oh, okay. Process of communication, someone says I have to speak in Hindi, so I will be using 2 bilingual language. Okay, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में 5 स्टेप्स दी गई हैं, जो कि इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ मैसेज. यहाँ पे आप जब इस चार्ट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट दोज 5 स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ मैसेज. किसी भी मैसेज को डिलीवर करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू थिंक इन आवर माइंड. तो पहले हम क्या करेंगे, अपने माइंड में उस चीज को एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे सेंटेंस को. इफ आई एम अ थर्स्टी, सो आई वुड से आई वुड कमांड टू समवन दैट प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ये सेंटेंस पहले मैं सोचूंगी, फर्स्ट आई फील थर्स्टी, देन मैं ये सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, उस मैसेज को डिलीवर करूंगी. उसे कहते हैं मैसेज इनकोडिंग. इनकोडिंग मतलब, कोडिंग का मतलब उसको इनकोड कर दिया मैंने उसको सेंटेंस में, दैट प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. द नेक्स्ट वन इज मैसेज ट्रांसमिशन. उस मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए मैं आवाज का यूज करूंगी, दिस इज कॉल्ड एज अ चैनल. एंड द फोर्थ वन इज मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन. उस मैसेज को जब आप सुनेंगे, या जिसे मैं कह रही हूँ, जब वो सुनेगा तो वो समझेगा कि मैंने क्या कहा है, दैट आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर. जब उसे समझ में आएगा, जो भी सुन रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए डिकोडिंग. मैंने एक इनकोड करके एक सेंटेंस बोला, जिसने सुना, जिसको समझ में आया, दैट इज द प्रोसेस इज डिकोडिंग. एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स उस चीज को समझ कर उस पर अमल करना. नाउ द फिफ्थ वन इज फीडबैक एंड इवेल्युएशन. फीडबैक एंड इवेल्युएशन कैसा होता है कि जो काम कहा गया है, जब उस पर रद्द अमल करते हैं, ग्लास वाटर जो है वो मुझे जब ग्लास ला कर देंगे तो वो फीडबैक होगा.
So this is the process, and here in this chart you can easily understand in the first that ग्रीन और येलो वन बॉक्स दैट हैज अ मैसेज सेंडर. अब उसको इनकोड करेंगे, इस तरह से एरो आगे जाएगी. चैनल जो है आवाज का होगा. यहाँ पे नीचे जो बैरियर्स लिखा हुआ है, आई विल डिस्कस इट लेटर. देन जब उसे डिकोड करेगा कोई भी जो सुनने वाला रेसिपेंट है, फिर उसके फीडबैक के लिए क्या होगा, उस मैसेज को इनकोड किया जाता है. और कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये क्वेश्चंस आता ही है आपको. यहाँ पे क्या होगा कि आपको इसकी सीरीज लगानी होगी कि पहले क्या आएगा, मैसेज आएगा, इनकोड आएगा, चैनल आएगा. तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से याद रखिए. नाउ move to the next slide, that is the 7 C's of communication. That is again a very important topic according to the NET examination. The 7 C's. 7 C's means that there are some key points of communication, and all the points are start from C, so that's why it's called as a 7 C's of communication. The first one is clear. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए. तो उसके ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि सब सी से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट. The first one is clear. Your communication, your sentence should be very clear. आप ऐसा ना हो कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और आपने कुछ गलत सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके बोल दिया, देन समवन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू व्हाट यू आर एग्जैक्टली सेइंग. ओके, सो योर सेंटेंस शुड बी वेरी क्लियर. The next one is correct. Your sentence construction should be correct. उसमें कोई incorrection नहीं होनी चाहिए. And the next one is complete. Your sentence should be complete in itself. उसमें and concrete. जो बात आप बोल रहे हो वो बिल्कुल concrete ठोस होनी चाहिए. अगर मैंने you bring a glass of water and I would say no, I'm just joking. So ये ethics के खिलाफ है communication के. So whatever you are going to say, that should be very concrete and concise. Concise means बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मुश्किल से sentences नहीं होने चाहिए. Your sentence should be very small, very understandable to everyone. अगर हम छोटे बच्चों को हमें कोई bookish language में बोलेंगे तो he is not gonna understand you, right? Is considered करने के काबिल होनी चाहिए. बातें वो उसको भरोसा नहीं किया जा सकता. ये सारे एथिक्स हैं कम्युनिकेशन के. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखना है. नॉशियस का उर्दू में मीनिंग आता है शाइस्तगी से बोलना. आप जो है बहुत रूडली नहीं बोलेंगे, आपके जो इखलाक जो वो जाहिर होने चाहिए while you are going to speak something. ओके, सो दीज आर द 7 C's. और ये 7 C's भी पूछे जाते हैं. इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है नेट एग्जाम में कि कुछ सी से रिलेटेड ऐसे वर्ड डाल दिए जाते हैं जो कम्युनिकेशन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होते हैं. सो आपको वहाँ पे 7 C's याद करके उसमें से एक वन वर्ड है जो उसको सिलेक्ट करना है. ओके, द नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन नेटवर्क. ओके, सो कम्युनिकेशन के नेटवर्क किस तरह से होते हैं. नाउ यू कैन इजीली सी इन द पिक्चर. सो देयर आर द 4 networks we can see. The first one is a wheel network. यहाँ पे भी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स के 4 जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं और कुछ एक ऐसा वर्ड होगा जो कि कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं है. Then you are going to select those options. The first one is wheel communication network. Wheel communication में कैसा रहेगा, जहां पर जो है वो like a circular motion. Wheel और circle इसका डायग्राम आता है तो आप इसे याद रखिए. चेन कम्युनिकेशन में ऐसे होगा कि लाइक अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, जो वर्टिकल होती है उसे चेन कम्युनिकेशन कहेंगे. सर्कुलर कम्युनिकेशन शुरू हुई है वो दोबारा आकर वहीं पे खत्म होगी एंड इट मेक लाइक अ सर्कल. सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सर्कल कम्युनिकेशन. Ma'am, your voice is not coming. Hello, am I audible to you?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please speak. Okay. Someone said that voice is not coming. Yeah, it was not actually coming. Is it okay now? Maybe your mic. Yes, ma'am. Okay. Types of communication. Here there are the four types of communication. That is, first one is intrapersonal communication. The second one is interpersonal communication. बहुत ही क्लोजली अगर आप देखें जब एग्जाम में होता है तो आपको ए और ई में बिल्कुल फर्क नजर नहीं आता बिकॉज ऑफ द हेजिटेशन एंड हम एग्जाम में बहुत ज्यादा घबराए होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता यहाँ पे ए और ई का फर्क है लेकिन दोनों कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. आई विल एक्सप्लेन यू. नेक्स्ट वन इज ग्रुप कम्युनिकेशन एंड द लास्ट वन इज मास कम्युनिकेशन. ये फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं. द फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल मीन्स ऐसी कम्युनिकेशन जो हम खुद से करते हैं. इंट्रापर्सनल ए है वहाँ पे जो खुद से बातें करना. जैसे कि हम प्रेइंग करते हैं जब हम दुआ मांगते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता. इन आवर माइंड दैट वी आर स्पीकिंग टू आवर ऑलमाइटी बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता है. और समटाइम ऐसा होता है कि हम घर में कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, हम कुछ कह रहे होते हैं. दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज ए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटर जब भी वर्ड आएगा यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगी दो लोगों में. राइट नाउ द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग जो अभी हो रही है हमारे बीच में वो क्या है. अभी मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आप जवाब दे रहे हो. दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्योंकि यहाँ पे टू वे प्रोसेस हो रहा है. नाउ द ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये होता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बैक टू बैक एक दूसरे को मौका मिलेगा लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में कैसा होता है लाइक हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता है ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे हर एक को मौका मिलता है, हर एक जो अपनी बात पेश कर सकता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है. थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल में. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकती है लेकिन कब, जब एक स्पीकर बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं. जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई वो कुछ बोल रहा है तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन होगी. दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन. वहाँ पे बोथ कम्युनिकेशन होगी. लेकिन जब जो ग्रुप है, जो अदर मेंबर्स, अगर उनको भी बोलने का मौका दिया जा रहा है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. Now the mass communication. Mass communication, that word mass is represent the massive number of people. जब मास कम्युनिकेशन, जब कोई बात हम एक साथ बहुत सारे लोगों को पहुंचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मास कम्युनिकेशन. और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, फ्लायर्स और जो कार्ड्स होते हैं जो कि हम बांटते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेके इनविटेशन कार्ड हो गया. तो ये सारी कम्युनिकेशन कैसी होती हैं? मास कम्युनिकेशन. होप यू आर गेटिंग दोज पॉइंट्स. Ma'am, transpersonal communication is also there, no? Yes. Transpersonal communication, yes, you are right, which is come under the intrapersonal communication. This is called as a transpersonal communication as well. जब हम खुद से बातें करते हैं उसके लिए सेम टर्मिनोलॉजी यूज होती है. इंट्रापर्सनल एंड ट्रांस कम्युनिकेशन बोथ आर सेम. नाइस क्वेश्चन बाय द वे. Thank you, ma'am. Okay, now come to the next slide. Communication types on the basis of direction. I will explain you this chart later. First, we have to know what are the types of communication according to the direction. First one is vertical communication. Vertical means that comes upward and downward. So these are the kind of communication जहाँ पे नीचे हायरार्की लेवल पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इम्प्लॉयज जो है अगर उसे कोई बात अपने बॉस तक पहुंचानी है तो वो किसके पास जाएगा? वो सुपरवाइजर के पास जाएगा. देन वो सुपरवाइजर से जाएगा, यहाँ आप इसमें देख लीजिए, इसमें समझ में आएगा ठीक से. जैसे सब ऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, अगर उसे अपनी कोई बात पहुंचानी है तो वो सुपरवाइजर के पास जाएगा. सुपरवाइजर जो है वो मैनेजर या डायरेक्टर के पास जाके अपनी बात पहुंचाएगा. इस तरह से ये बात जो है वो जब नीचे से ऊपर तक पहुंचती है दैट इज कॉल्ड एज अ अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड that is a vertical communication. The next one is downward communication, which is totally opposite to upward communication, right? When a boss or the director of the company wants to share some command or some notice to all the members of the community or members of the organization, what should he do?
he will transmitted those notice and those commands to the director and to the सब ऑर्डिनेट्स. वो एक नोटिस जारी करेगा, उसे नोटिस बोर्ड पर लगवाएगा. मे बी अगर आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहा है तो इस तरह से जो है वो बॉस की जो भी नोटिस है वो सब ऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाएगी. जब ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन होती है दैट इज डाउनवर्ड, और नीचे से ऊपर जब होगी दैट इज कॉल्ड एज अ अपवर्ड. Okay, the lateral communication. This is the second type of communication. Lateral is also called as a horizontal communication. जब किसी organization में हम एक ही level पर है. Right now I am a teacher here on my organization. If I am talking to my other colleague teachers, so this communication is called as a lateral communication, जो कि एक ही level पर हो रही है. अगर मैं दूसरे teacher से बात करती हूँ तो वो लेटरल होगा. लेकिन अगर मुझे कुछ बात पूछनी है और मैं जाके वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से जाके पूछती हूँ तो वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्टिकल कम्युनिकेशन में, क्योंकि मैंने हायर अथॉरिटी से कंसल्ट किया, उनसे जाके पूछा, तो वो वर्टिकली हो जाएगी. नाउ द थर्ड वन इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल कम्युनिकेशन मीन्स एक रेक्टेंगुलर है और अगर आप उसको तिरछी लाइन बनाएंगे तो कॉर्नर ए से वो सी तक जाएगी. अब डायगोनल कम्युनिकेशन में कैसा होता है, यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट है. समझ लो ए बी सी डी 4 स्टेप्स हैं या 4 जो है वो लेवल्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. अब मैं लेवल ए पर हूँ और मुझे किसी को बी लेवल तक अपनी बात को पहुंचाना है, लेकिन मैं बी को स्किप करके मैं सी पर जा रही हूँ. एक जो है वो लेवल को स्किप करके अगर मैं सी लेवल पर जा रही हूँ तो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज अ डायगोनल कम्युनिकेशन, जहाँ पर जो है वो आप वर्टिकल जो डायग्राम उसको फॉलो नहीं करते हो, सो दैट इट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू द डायगोनल कम्युनिकेशन. ओके, द कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल. अभी मैंने लास्ट आपको बताया वो जो चार्ट था उसमें चैनल जो था, मैंने बताया आपको कि वॉइस जो आवाज़ है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ चैनल. अब यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए देर आर 3 चैनल्स विच वी यूजुअली यूज. द फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन. Verbal communication itself says that it has some words, okay, that orally or written, इसमें दोनों आएंगे. Again we have a chart after this slide. The second one is non-verbal communication, जहाँ पे words नहीं होगा, only body language इसमें होती है. Now the next one is written communication, which is also under comes under the verbal communication. इसी में आएगा जो written होगा, लेकिन इसे अलग से भी बताया जाता है क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. दैट्स वाई. नाउ लुक एट दिस चार्ट. द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन अ कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड ऑन अ स्टाइल एंड पर्पस. फर्स्ट हम दैट ग्रीन वन देखेंगे, दैट स्टाइल एंड पर्पस. हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, देयर आर द 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, formal and informal, and we usually write some formal letters and informal letters. तो जो basic इसकी टाइप्स है स्टाइल को लेकर तो 2 है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. एंड द नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल. इसमें होगा नॉन वर्बल एंड वर्बल. यहाँ पे वर्बल मैंने आपको बताया कि ओरल होता है, रिटन, और उसी में आता है ये ओरल और रिटन आएगा वर्बल में. अब ओरल के भी 2 पार्ट्स हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन और डिस्टेंस कम्युनिकेशन. फेस टू फेस जब हम पर्सनली फिजिकली एक दूसरे से मिल रहे हैं किसी मीटिंग में, लाइक इंटरव्यू जो हो रहा है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन रहेगा. लेकिन डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैसा होगा? Right now I am talking to you, I am very far away from you. Some aspirants are having this lecture from some another cities. So यहाँ पे डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ओवर कॉल, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द डिस्टेंस कम्युनिकेशन. नॉइस. नाउ वहाँ पे जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बोला था बैरियर लिखा हुआ है, बैरियर और नॉइस वेरी क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर बट नॉट एग्जैक्टली सेम, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो नॉइस और बैरियर के क्वेश्चंस में डिफरेंस होगा. नॉइस, व्हाट इज नॉइस? Okay, noise is nothing but the something which interrupts our communication and make our communication ineffective. Noise उसे कहा जाता है जो कि हमारे जब हम communication कर रहे हैं और हमारी communication में किसी चीज़ की दखल हो जा रही है और मैं जो आपको बोलना चाह रही हूँ मैं ठीक से ना बोल पाऊँ तो वो noise कहलाएगा. और ये interruption किसी भी चीज़ का हो सकता है. उस interruption के 4 parts दिए गए हैं जो कि यहाँ पे हैं. The first one is physiological noise,
देन साइकोलॉजिकल नॉइस, फिजिकल नॉइस एंड सिमेंटिक नॉइस। आप ध्यान से देखिए, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कम्युनिकेशन। The first one is physiological noise. Physiological means which is related to your body physics. अब आपकी बॉडी फिजिक्स में क्या हो सकता है, क्या चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है while speaking? Maybe you are in anger, maybe you are sad, you are fatigued, you are tired, you are angry. Maybe this kind of the situation of your mind comes under this category physiological noise. मैं बहुत गुस्से में हूँ और अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है और मेरी लाइफ चेंजिंग डिसीजन है और मैं सही डिसीजन नहीं ले पाऊंगी अगर मैं गुस्से में रहूंगी तो यही होगा कि ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है मुझे मेरा गुस्सा, या अगर मैं सैड हूँ या कोई मेरे साथ तो कुछ इंसिडेंट हो गया है तो दिस इज कम्स अंडर द फिजियोलॉजिकल नॉइस. Now the next one is psychological noise. Psychological is also related to your state of mind. Sometimes you feel happy, sometimes you feel very sad. So these psychological disturbance. अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जो हो गया वो आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल नॉइस कैसा होता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है, मे बी कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया जो आप कभी भुला नहीं पा रहे हो जाता है किसी के साथ, कोई आपका लव्ड वंस आपको छोड़ के चला गया हो, तो ये साइकोलॉजिकल कैसा ट्रॉमा आपके माइंड पे वो बहुत जल्दी नहीं जाएगा. तो थोड़ा सा डिफरेंस है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में. यहाँ पे फिर आप कोई डिसीजन बिल्कुल करेक्टली नहीं ले पाओगे इस सिचुएशन में. नाउ द फिजिकल नॉइस. फिजिकल नॉइस कम्स अंडर द फिजिकल इंटरप्शन, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल हो गया, ट्रैफिक की जो नॉइस होती है, गाड़ियों के हॉर्न की, और मे बी अगर कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर में कोई स्पीच दे रहा है और हम वहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं और हम ठीक से हमारी बात को नहीं बता पा रहे हैं, दैट इज अ फिजिकल नॉइस. The fourth one is semantic noise, which is once again important point. Semantic noise, which is related to semantics, related to grammar, sentence construction, which is totally related to your understanding कि आप किस तरह से उसे अपने जो जुमले हैं आपके जो अल्फाज हैं वो किस तरह से उसको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके आप बोल रहे हो, which is comes into the semantic noise. Now the next one is communication barrier. Again a very important points. These are the 5 communication barriers which we are going to deal one by one. The first one is organizational barrier. Again that communication जो किसी भी organization में communication that plays a very important role. किसी organization को चलाना this is not easy thing. वहाँ पे communication का जो flow है that should be very smooth. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बैरियर किसे बोलते हैं, रुकावट को. आपकी कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावट आती है, उसमें पहला जो दिया हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनिवर्सिटी है, अब उसमें मोर देन 500 असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन एंड सुपरवाइजर एंड वाइस प्रिंसिपल, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसको संभालने के लिए दैट इज नॉट इजी टू कलेक्ट ऑल ऑन वन प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे बैरियर्स आ सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर ज़्यादा हैं तो. नाउ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज, अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो हम बात को कैसे पहुँचाएंगे. दीज डेज ड्यू टू द पैंडमिक कोविड-19 सिचुएशन की वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. अब यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस हो गया, उनका ऑफिस है पुणे में, वो काम कर रहे हैं मालेगांव में, तो फिर कैसा होता है वो कम्युनिकेशन स्मूथली नहीं हो पाता है. आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप खुद डिसीजन लेकर करते हो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब एंड एक्टिविटीज. आपका स्पेशलाइजेशन जॉब और एक्टिविटीज ऐसा होता है कि आप किसी और स्ट्रीम के हो और आप किसी और दूसरी अदर स्ट्रीम में काम कर रहे हो, तो आपका क्या माइंड डिस्टर्ब होगा. ऐसे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और आपको सिविल इंजीनियरिंग का अगर कोई टास्क दिया जाए तो यू वुड नॉट बी स्मूथली डन इट वेरी वेल. So these kind of specialization of job that affects to our work, that organizational rules and regulations. Some organization में ऐसा होता है कि इतने hard and fast rules and regulations होते हैं that you can't follow them properly. वो भी बैरियर्स करते हैं. पावर स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, पावर स्ट्रक्चर यही हो गया जो अथॉरिटीज मेंबर है. इन एडुकेट फैसिलिटी, सम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये भी आपको कम्युनिकेशन बैरियर्स में आ सकता है. Now the next one is physical barrier. Physical barrier which one we can feel like the environmental stress,
अभी मैंने बताया स्ट्रेस कैसे होगा, अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, समवन इज स्पीकिंग, तो ये स्ट्रेस पैदा करता है, आपका माइंड आप चिड़चिड़ा फील करोगे, राइट? The first one is competing stimulus. Competing stimulus means that something which is compel you. एक ऐसी चीज है जो आपको मजबूर कर रही है, कि स्टिमुलस एक कुछ मुहर्रिक ऐसा है जो आपको उस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करे। कहीं समझ लो एक सॉन्ग की आवाज आ रही है और आप ये सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ रही है, आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे, कहीं कोई फंक्शन तो नहीं है। ये आप क्या करते हो, उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, और अगर आप उस वक्त किसी से बात कर रहे हो तो आपका कन्वर्सेशन सही नहीं होगा। And the last one is receivers unfamiliarity with medium. अनफेमिलियरिटी विथ मीडियम, मीडियम अगेन चैनल और मीडियम दोनों सेम चीज है। जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे और मैं हिंदी में बोल रही हूँ और इंग्लिश में, आई एम यूजिंग टू लैंग्वेजेस। लेकिन अगर किसी को सिर्फ मराठी आती है और वो मेरे लेक्चर में है तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो अनफेमिलियर है वो मेरी बोथ ऑफ लैंग्वेजेस से, हिंदी और इंग्लिश से। अगर ऐसा ही कोई रिसीवर है जो सुनने, रिसीवर मीन्स लिसनर्स, ओके। जो सुनने वाला है अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इट डजंट मीन दैट यू आर स्पीकिंग इफेक्टिवली बिकॉज समवन इज नॉट गेटिंग यू, राइट? ओके, the next one is psychological barrier. Psychological barrier again which related to your mental status. The first one is frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स वही अभी मैंने बताया, जो आपके पास्ट में कुछ हो गया है और आप उसी से रेफरेंस करके आप जो है वो टुडेज के टाइम में आप उस चीज को लेकर सोच रहे हो, ये भी बहुत बड़ा बैरियर है। नाउ द सेकंड वन इज सेल्फ इमेज। हम अपने माइंड में एक हमारी इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये रुकावट पैदा करती है चीज को। जैसे किसी को स्टेज डेयरिंग नहीं होती और उसे लगता है मैं कभी भी स्टेज पर बोल नहीं सकता हूँ, तो इसने एक अपनी खुद की इमेज बना ली है, वो कभी भी जाकर बोलेगा नहीं। तो हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, कम्युनिकेशन को हम अपने आप को अलाउ नहीं करते कि दैट वी कैन डू इट एज वेल। द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वॉट एवर द एक्सपीरियंस वी हैव इन आवर पास्ट, ओके, अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया है तो हम हर इंसान को उसी एक्सपीरियंस पे जज करेंगे। एक अगर खराब है तो हम सबको उसी वे में लेंगे कि नहीं ये भी उसी कैटेगरी में आता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, डिसोनेंस मीन्स तजाद। कॉग्निटिव विच इज रिलेटेड टू योर माइंड एंड योर थिंकिंग, चीजों को तजाद कर रहे हो, आप एक पॉइंट पे सोच नहीं पा रहे हो, विच इज कम अंडर द कॉग्निटिव and fear against which is come to your state of mind. सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन मीन्स आपने कोई परसेप्शन, कोई सोच को सिलेक्ट कर लिया है, नहीं ये चीज ऐसी ही होती है, भले उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हो जाए, आपने तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो स्टिक पे। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग ये बिल्कुल थोड़ा सेम है सिलेक्टिव परसेप्शन के। फिल्टर करना मीन्स किसी बात को आपने फिल्टर करके बस उसी बात को आपने सही मान लिया है, ओके। Now the next one is linguistics and cultural barrier, which is related to our day-to-day life. Linguistics, what we speak and what in what culture we are living right now. These barriers are like these semantic barriers. कि हमारे लैंग्वेज में सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस कैसा है, हम सेमेंटिकली उसे सही बोल रहे हैं या नहीं, विच इज रिलेटेड टू ग्रामर। द नेक्स्ट वन इज हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चरल। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है। कभी हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चरल मीन्स दिस इज रिलेटेड, कॉन्टेक्स्ट आर रिलेटेड टू आवर कल्चर। क्रॉस culture communication when we meet to the some to some another culture। अगर हम किसी पहाड़ी इलाके के लोगों से मिलेंगे तो वहाँ के कल्चर बहुत अलग है, और हम जो है वो प्लेट्यू रीजन में रहते हैं तो हमारे यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वे ऑफ लिविंग है हमारे होंगे। तो यहाँ पे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन उसे कहेंगे जब हम किसी दूसरे कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, right? Next one is mechanical barriers. Mechanical barriers which has languages, perpetual biases, impersonal relationship and cultural differences. These are the barrier. Languages means that right now I am speaking into bilingual languages. Again ये वही है कि अगर आपका जो
नहीं आ रहा है, तो दैट अगेन क्रिएट्स द बैरियर. परपेचुअल बायसेस मीन्स कुछ ऐसी मतलब बायसनेस मीन्स हैविंग सम प्रेजुडिस मीन मैंने कुछ अपने माइंड में कुछ अपने दोस्तों को फिक्स कर लिया है, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करूंगी और दूसरे लोगों को मेरी जो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा. इम्पर्सनल रिलेशनशिप मीन्स लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं करना, लोगों से जो है वो दूर रहना. तो ये भी जो है बात पाओगे लोगों. कल्चरल डिफरेंसेस अगेन विच कम अंडर द मैकेनिकल बैरियर्स. वही होगा अगर डिफरेंस कल्चर है देन यू हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज एज वेल. नाउ दैट इज द थिंग मास कम्युनिकेशन. आप देख सकते हो इन फोटो दैट हाउ मास कम्युनिकेशन वर्क्स थ्रू टेलीविजन, इंटरनेट, बिलबोर्ड, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, radio. So these are the platform where the mass communication are very familiar with that, because we are living in 21st century. We all are habitual of using mobile phone, PC, laptops, whatnot, right? So mass communication are the process of the imparting and exchanging information segment of the population. Mass that stand for the in number of people. तो यहाँ पर एक साथ इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों को जाएगी. यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मास कम्युनिकेशन से आपको ये जितने भी दिया हुआ है सोशल मीडिया, लीफलेट, इस तरह से आपको ऑप्शंस होंगे और उसमें से आपको देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है. जैसे अगर इसमें इंट्रापर्सनल वर्ड आ जाता है तो दिस इज नॉट अ मास कम्युनिकेशन. Mass communication is usually used to distribute a similar message to a group of the population that have means to use that form of mass media. मतलब अगर लोग पहुंचा सकते हैं, अगर एक सेम मैसेज हमें ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना है तो ये भी. Now the some important terms. Now these terms which I have personally collected from all the materials I have been studying since I was studying for my net and set examination. So these terms are very important, and if you are willing then you can write it as well. The first one is synchronous media. If we see that word is not new to us, दैट आप सिर्फ सिंक देखो, SYNC. सिंक का मतलब है एक दूसरे को जोड़ना. हम मोबाइल में भी सिंक का ऑप्शन होता है. सिंक्रोनस मीडिया ये, लेकिन अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे सिंक्रोनस मीडिया होगा. इस मीडिया की जगह पर आप सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी देख सकते हो, वो टर्म भी यूज होती है. सिंक्रोनस मीडिया में ये होगा कि जब दो लोगों के बीच में बात हो रही हो तो दोनों एट प्रेजेंट एक साथ मौजूद होते हैं. जैसे कि अभी आप भी सुन रहे हैं मुझे, मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे सिंक्रोनस मीडिया है. व्हेन वी आर टॉकिंग ओवर फोन कॉल, वो भी सिंक्रोनस मीडिया है. व्हेन वी आर चैटिंग ऑन व्हाट्सएप लेकिन सामने वाला ऑनलाइन है तो वो सिंक्रोनस है. अगर ऑफलाइन और आपने मैसेज भेजा तो वो असिंक्रोनस हो जाएगा. सिंक्रोनस मीडिया में दोनों का जो सेंडर और रिसीवर है एक टाइम पर दोनों होंगे मौजूद. असिंक्रोनस बिल्कुल उसका अपोजिट है. जैसे कि तो नहीं है फौरन उसने देख लिया होगा जिसे भी मैंने भेजा है, नहीं वो थोड़े में भी आधा घंटा बाद देखे तो ये असिंक्रोनस मीडिया हो जाएगा कि सेंडर और रिसीवर का जो एक्शन है वो एट अ सेम टाइम इट डजंट गोइंग टू हैपन. और टाइम शिफ्ट में ये होता है विच इज अगेन रिलेटेड टू असिंक्रोनस मीडिया. टाइम शिफ्ट में ये होता है जैसे कि हम कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई छोटा सा हमने शॉर्ट वीडियो बना लिया या कोई यूट्यूब शॉर्ट्स बना लिए, हमने बनाया उसको 1 तारीख को और हम उसको पोस्ट कर रहे हैं 3 तारीख को. तो यहाँ पे जो है वो बीच में एक दिन जो गैप, टाइम शिफ्ट, दिस इज अगेन active listening. Now you guys are listening to me what I am saying right now, but your listening is really active. एक्टिव लिसनिंग में ये होता है कि जब आप सुन रहे हो तो उसको एट अ सेम टाइम समझ भी रहे हो. जैसे कि एक हियरिंग होता है और एक लिसनिंग होता है. हियर में आवाज आपके कानों पे पड़ रही है, जैसे बहुत सारी आवाजें आसपास से आती रहती, लेकिन हम उसको समझते नहीं है कि हम उसके बारे में सोचते नहीं किसी ने कुछ कहा. लेकिन एक्टिव लिसनिंग में ये होता है कि हम उस बात को सुनने के साथ समझते भी हैं. दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव लिसनिंग.
That the next one is communication apprehension. Apprehension means जो हमारे दिल में डर और खौफ होता है, कभी हम किसी अथॉरिटी मेंबर, कभी हमको हमारा ऑफिस में फर्स्ट डे और हमें बोल दिया कि जाके आप जो है आपके बॉस से कल के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई करो, तो वो जो एप्रीहेंशन, जो खौफ होगा कि आज तो पहला ही दिन है, हाउ कुड आई आस्क फॉर हॉलीडे। तो ये कम्युनिकेशन का जो एप्रीहेंशन है वो कब क्रिएट होता है, जब आपके दिल में कोई फियर हो। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मीन्स अभी हमने देखा कि दीज देयर आर द 4 स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल: स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, उनकी सीरीज ऐसी है, आपको इसी तरह से याद करना है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट 2 वन इज और ऐसी, सेकंड वन इज लिटरेसी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस में ये होता है कि आपके जितने भी ये 4 स्किल्स हैं आप उसमें मास्टर हो, आप अच्छी से बोल भी सकते हो, सुन भी सकते हो, लिख भी सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज ए कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल लिसनिंग। अब देखो, एक्टिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग बोथ आर क्वाइट अपोजिट। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होगा, हम सुन तो रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन वी हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग ओवर द टॉपिक, हम उसके बारे में क्रिटिकली सोच रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं उस चीज पे, तो वो ऐसी लिसनिंग जो हो जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल लिसनिंग पे ये हो जाएगा हम इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम उसको क्रिटिसाइज कर सकें सुनने के बाद, तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल लिसनिंग। Now the next one is cross cultural communication. ये already I have discussed that किस तरह से दो कल्चर के लोग मिलते हैं तो दोनों की लैंग्वेज में, स्लैंग्स में, उनके प्रोनाउंसिएशन, टोन सब डिफरेंट होता है। Now the next one is kinesics. काइनेसिक्स को आप ऑब्लिक करके बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हो, लेकिन नेट एग्जामिनेशन में ये वर्ड ज़्यादा यूज होता है रादर देन बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिक्स के बारे में आपको आएगा जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि बॉडी मूवमेंट्स किस तरह से होते हैं, और या फिर बॉडी मूवमेंट्स के रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ है वो काइनेसिक्स के साथ जाएगा, एंड दैट वुड बी योर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसा होता है, मार्केटिंग करने के लिए, अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी सेल्समैन होता है, जो वो कम्युनिकेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ये सेल्समैन हो गया, आपके डोर टू डोर आके वो आपके प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट आपको बेचने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग कम्युनिकेशन में और क्या आ सकता है रादर देन दिस? Advertisement. Very good, very nice. That is come under the marketing communication as well. Now the next one is meta communication. Meta communication, the communication means that word meta which is related to beyond communication. लेकिन जब communication की बात हो रही है, that is called as a meta communication. Right now for 25 or 30 minutes से जो हमें communication की बात कर रहे हैं, that is called as a meta communication. मतलब communication, जब कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, समझ रहे हो कि कम्युनिकेशन के बारे में बात करना मेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, जो कि हम कर रहे हैं राइट नाउ। एंड पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज में क्या होता है, पैरा लैंग्वेज विच इज द मीन्स हाउ यू डिलीवर द लैंग्वेज। यहाँ पे ये होता है, मार्केटिंग का दोबारा बोलिए। हेलो, यस, मार्केटिंग का दोबारा बोलिए ना मैम। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जी। Yes, marketing communication is the kind of communication where the person is trying to sell his or her product to you. अब इसके लिए वो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलेगा, आप ले लीजिए, आप ये फायदा, ये ऑफर है, वट एवर। ओके, तो ये हो गया डोर टू डोर जो सेल्समैन आके आपको सेल करते हैं, विच इज कम्स अंडर द मार्केटिंग। आंसर्ड मी, एडवर्टीजमेंट जो टीवी पर आता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा वेरी ब्राइट कलर एंड वाइब्रेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाते हैं, और बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टर्स को यूज करके उनके प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, दैट इज द मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट जो आते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि आपको हो सको, और जब उनकी चीज़ें अगर बिक रही हैं तो वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया उनका। Now the para language, come to the para language. Okay, para language means when we speak to someone, तो आप यहाँ पे ये होता है कि आप what you speak it doesn't matter, how you speak it matters in para language. means आपने किस तरह से बोला वो important होता है para language में, आपने क्या बोला ये नहीं है। means sometimes you are singing some song and you don't know the lyrics, the meaning of those lyrics,
कुछ बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि अदर लैंग्वेजेस के हमको समझ में नहीं आते, लेकिन वो इतने सूदिंग टू हियर लिसन होते हैं कि आप उसको गुनगुनाने लगते हो। तो यहाँ पर क्या है, पैरा लैंग्वेज है ये। आपको समझ में तो नहीं आ रहा है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन आप गा रहे हो। आप किस तरह से गा रहे हो, बिकॉज यू आर एंजॉइंग दोज सॉन्ग्स। तो दिस इज पैरा लैंग्वेज। नाउ रूमर्स। रूमर्स मैंने बताया ऑल चैनल में, याद करो उस स्लाइड्स में जो दिया हुआ था। रूमर्स उसी तरह से है कि अगर कोई बात किसी पॉइंट से निकल रही है और वो एट द सेम टाइम से वो बहुत सारे लोगों में फैल जा रही है, हर स्टार्टा के लोगों में, बड़े लोगों में, बच्चों में भी, हर तरफ से फैल गई कोई अफवाह, तो ये रूमर्स कहलाएगा, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती रूमर्स की। नाउ द फीडबैक। फीडबैक ये होता है कि जब आपको मैं कुछ कह रही हूँ, दैट व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ओके। और अगर आपने बता दिया दैट माय नेम इज दिस एंड दैट, तो जब आपने जवाब दिया दैट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक, वेरी सिंपल। नॉट डायट। डायट जो होता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इंटरपर्सनल में देखा था हमने, एक और दो लोगों के बीच में हो सकती है, और वन और मेनी के बीच में भी हो सकती है, और इंट्रापर्सनल में हमने देखा कि हम खुद से बात करते हैं, वहां हम अकेले बात करते हैं। लेकिन डायट में क्या होता है, डायट में ये होता है कि सिर्फ दो लोग हैं। जैसे हम फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, वो डायट की कैटेगरी में आएगा, जहां पे सिर्फ दो ही लोग हैं। होप यू आर गेटिंग ऑल द टर्मिनोलॉजीज दीज your net point of view. Okay, now come to the last session. That's I have selected some questions for you. That questions already asked in the net examination. The first one is identify the correct sequence of decoding process of communication in classroom. आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना है डिकोडिंग प्रोसेस का ऑफ कम्युनिकेशन का। हमने चार्ट में देखा किस तरह से पहले इनकोडिंग आता है, फिर वो डिकोडिंग कैसा होता है, तो उसके आपको सीरीज बता। वॉच द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव मी द आंसर प्लीज। Answer number 4. ओके, एनीवन एल्स? 4. ओके, फोर्थ ऑप्शन है। okay, you are all correct. Fourth option is right, that the sensory involvement, interpretation, evaluation and feedback. feedback हमेशा लास्ट में आएगा, तो Last आपको में देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें फीडबैक लास्ट में है। और सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताया कि जब आपको कोई कुछ सेंटेंस बोलना है तो पहले आप उसको कंस्ट्रक्ट करोगे आपके माइंड में, तो यहाँ सेंसरी ऑर्गन आ गया, आपका जो माइंड है। फिर इंटरप्रिटेशन, आप उस जो आपने उसको डिलीवर कर दिया तो सामने वाला जो सुन रहा है उसको समझेगा, इवेलुएट करेगा, और उसके ऊपर जो उसका अमल होगा, रिएक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक। सो द फोर्थ नंबर इज राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Communication variables involved in model of performance are. First one is coding, encoding, passive resistance, channelization, indifference. इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे आपको चार में से सिलेक्ट करना है कि कौन से वेरिएबल हैं जो कि उस मॉडल में थे और कौन सा नहीं है। वॉच द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर प्लीज। Third one, anyone else? मैडम जरा ओके ओके, कम्युनिकेशन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो भी उसमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो वेरिएबल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको चार्ट बताया था, इनकोडिंग से लेके डिकोडिंग तक और फीडबैक होता है उसमें। तो आपको यहाँ पे वो ढूंढना है ऑप्शन ABCDE में, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं। कोडिंग है, इनकोडिंग है, पैसिव रेजिस्टेंस, चैनलाइजेशन मैंने बताया, मीडियम और चैनल दोनों वर्ड यूज होते हैं इसमें, और इंडिफरेंस। अब इसमें से आप वो चीजें रिमूव कर दो जो कि मैंने नहीं बताई, और जो बताई है उसको ऐड कर दो, और फिर नीचे 1 2 3 4 में से जो जो सर बताओ मुझे। मैम ABD. मैम थर्ड वन। ओके, एनीवन एल्स? थर्ड ऑप्शन। मैडम व्हाट इज इंडिफरेंस? थर्ड वन मैम। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मींस तजाद, मतलब दो डिफरेंस है उसमें। ओके मैडम ऑल।
Yes, that third one is the right answer. अब यहाँ पे है इनकोडिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉरी कोडिंग होगा, और उसको इनकोड किया है आपने आपके वर्ड्स में, और उसके बाद चैनलाइजेशन है, यहाँ मीडियम या चैनल 2 हो सकते हैं, और डी पे जो दिया हुआ है कौन सा है, चैनलाइजेशन है, सॉरी 3 ही दिया हुआ है यहाँ पे, उन्होंने पूरा क्वेश्चंस में पूरे जो प्रोसेस है उसको इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे ए बी और डी, दैट इज द राइट आंसर. The third question is which of the following are the barriers of effective communication? आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि effective communication किसे कहते हैं. Communication और effective communication में फर्क है. Communication ऐसा होगा जहाँ पे मैं कह रही हूँ, अब जरूरी नहीं आप में 100% जो बात मैंने बोली आपने 100% ही समझी, तो ये कम्युनिकेशन होगा. मे भी आपको 60% समझ में आया, 70% समझ में आया, लेकिन अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ और मेरा कहने का जो मतलब है वॉट एवर आई एम सेइंग, और 100% आप उस बात को वैसा ही समझ रहे हो, तब वो कम्युनिकेशन क्या कहलाती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है. यहाँ पे दैट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने में वो रुकावट लाते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं. साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, sorry, first one is physical noise, semantic and psychological, and the last one is non semantic noise. अब आप इसमें से find out करो and try to give me the First answer. one. Second one. Second. I'm second. Anyone else? Second one, A, B, C, and D. A, B, C and D. A, B, A, B, C, A, C. Okay, you are right. A, B and C. नॉन सेमेंटिक नॉइज जैसा कुछ है ही नहीं. देखो सेमेंटिक में नॉन लगा के बिल्कुल आपको क्लोज इस तरह से वर्ड्स जो है वो इसमें आपको आंसर्स के ऑप्शंस में दिए जाते हैं. Okay, so this is the last question which we have completed here, and now it's your turn. If you have any question to me, you can ask me. Ma'am, can we use figures in non-verbal? Non-verbal communication में figures. Figures means which kind of figures are you trying to say? Like any graph, pie chart, or table, something like. ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नो, अगर अब पाई चार्ट को कुछ है तो आप उसमें कुछ तो लिखोगे ना कि वो किस चीज़ का पाई चार्ट, तो वो ऑटोमेटिकली जो वो वर्बल कम्युनिकेशन में हो जाएगा. आप बिल्कुल कोई साइन बोर्ड भी अगर है तो उसका कुछ मीनिंग है, वो आपको आप वहाँ लिखा हुआ नहीं लेकिन आपके माइंड में तो है. अगर स्टॉप की प्लस साइन लिखी हुई है तो वो कैसी कम्युनिकेशन है, आपको पता है ना कि यहाँ पे स्टॉप रेड अगर है, तो दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन. एनीथिंग एल्स? मैडम मेटा कम्युनिकेशन एक बार फिर से बताओ ना. मेटा कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन इटसेल्फ. लाइक हम अभी कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी टाइप्स क्या है, चैनल क्या है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करना मेटा कम्युनिकेशन कहलाता है. थैंक यू मैडम, थैंक यू. एनीवन एल्स? Ma'am, group. Group? Thank you. Okay. मैम मेरा Class stop here. यूट्यूब पे जो लिंक है ना मैम वो जरा ग्रुप में शेयर कर दो. मुझे नहीं पता था कि क्लास वेट करने में मेरी क्लास में. Okay, ma'am. We will share the link of this recorded lecture as well. Now you can join there again. आप बार बार भी देख सकते हो उसमें, हम आपको शेयर कर देंगे. Thank you, ma'am. Okay. So I am wishing you all the best to all the NET and SET aspirants. I very appreciate your efforts that you have listened to me very carefully and asked a very interesting question. Thank you so much for joining me here. I am Zareen Naz and I am signing off. All the best for your future. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Class was थैंक यू सो मच मैम. हम अपने आप Thank you, ma'am. समझते हैं मैम आपकी क्लास सुनना. बहुत अच्छे से ली मैडम आपकी क्लास. Okay. Thank you so बहुत much. बहुत शुक्रिया मैम. Okay. Now you are giving the feedback. Yes, ma'am. Yes, this is the feedback.
After Yeah. finishing the session, that you guys are just praising me. This is nice feedback, and thank you so much for your kind words. Okay, thank you, ma'am. Bye. Thank you. Thank you, Allah ma'am. Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am, for a great session. From being the session from monologue to the dialogue is a great achievement of this session. And you have guided the students in very understandable language, simple language, and also given examples how the NET exam will ask the questions. And I am also thankful to the participants for their active listening in this session. So I thanks to the Zareen ma'am for their great session, and to the participants also. Tomorrow we have fourth session, and on teaching aptitude, Professor Rubina ma'am will deliver her lecture tomorrow at 11 a.m. So I request all the participants to be present there. Thank you so much, all the participants. We will meet tomorrow. Today's session is ended over here. Yes. Thank you so much. Thank you, Zareen ma'am. The lecture was too good, Thank you so much. full of knowledge. It was so nice. Yeah. Thank you so much, all the participants. We will meet tomorrow.